Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, still we continue the phylogenetic systematics. The next lecture now we are going to is the lecture number 19. जैसा कि हम अभी पीछे बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में कि बेसिक कंसेप्ट्स हैं बहुत सारे जिनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है एंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग दोस without having those concepts you won't be able to construct a real phylogenetic tree and you won't be able to understand a tree built by someone else or you won't be able to interpret the tree constructed by your good self. Okay, so these are very important concepts to learn, and sadly in previous years these concepts have been faded thanks to you for not making efforts to clear those concepts of yours. Anyway, I don't want to criticize you for that. We have to learn these now. Okay, I have a question for you that what do you think? Do all similarities reflect common ancestry? हमने पीछे बात की कि आपने एक जानवर को देखा डेजर्ट में, I mean at an unknown place, I mean by saying the desert, it may be a forest too or a mountain too, whatever. आपने एनिमल को देखा और आपने फ़ौरन से उसको ग्रुप कर दिया based on the similarities कि it was a dog like buffalo. Why? How dare you call it a buffalo? I mean it is a dog-sized animal which just look like buffalo, but it doesn't make sense that being a biologist, an evolutionary biologist, you group that organism immediately into the buffalo. I mean, you decided it's even the genus and the species too. You should have done some analysis before saying that, right? You must study the genome. That animal is new to you, okay? New to you means it is new to the whole world. Nobody knows it. Nobody has seen it ever before that. So you're going to classify that organism into a species. It is a dog-sized and it looks like a buffalo. You can also say a buffalo-like dog. You could have said that. So it is complicated. So based on this hint which I have given to you, that do all similarities reflect common ancestry? What do you think? Okay, keep thinking. I gave you another hint. While we were studying the speciation, I showed you the meadow larks, remember? Two sparrows looking birds, if you remember. I showed you and asked you that what do you think, either they are similar species or different. So some of you said that they are different and others said it is similar. So I told you, what did I tell you? I told you cannot say that you cannot either say, you cannot say that they are a similar species or a different species just by looking at them. You need more detailed studies before you say that. So it means similarities do not reflect that they are the same species. If they are not same species, then how you can tell about their ancestry, which is even difficult to know or difficult to understand, right? So similarities. So the question is, I again ask the question, do all similarities reflect common ancestry? You're right. No. Okay. There are different kinds of similarities which reflect something, but that does not explain you the ancestry. To understand the ancestry, I'm saying it over and over again, it's not easy. It is difficult to establish an ancestral relationship. Okay, so now we need to understand what are different kinds of similarities and why they do or they don't reflect the common ancestry. What's the problem? What are the challenges there? So the first thing you need to learn here is homology. You have heard that term many times, starting from your high school and in biology and in molecular biology and in cell biology and different courses. I believe you must have heard this term homology. The first thing you need to learn, it is not homology, right? It's homology. In biology, by homology, we do not mean
that you have learned previously. For example, we say homo means similar. So homology means similar structures or similar characters or similar features. No, it does not mean that. When you say in biology, whenever you say it doesn't mean you are studying zoology or botany or microbiology or molecular biology or cell biology. In life sciences, when you say homology, by homology we mean that similar features between two organisms. For example, if there are two organisms and they have similar features or similar anatomical, physiological, or different, morphological structures, similar structures, and they have similar structure and they are because of common ancestral relationship, then we call those structures as homologous structures. Okay, do you understand this? Okay, let me explain you in another way. For example, if I say you, if you read in a book and there is a statement that forelimbs of the mammals are homologous structures, it means by that statement we mean that forelimbs of the mammals are similar structures and they have ancestral relationship. It means that these structures were evolved in the ancestor of the mammals first, and then those mammals were species. They divided into different species and so on and so forth later. But those structures were present in their ancestors, means they were evolved in their ancestors. Do you understand this now? So by saying homologous structures, there are different types of similar structures. Not all similar structures are called homologs or homologous structures. Okay, सब similar structures जो हैं वो homologous structures नहीं होते. जब हम कह देते हैं कि ये दो स्ट्रक्चर्स या ये दो चीज़ें, ये दो फीचर्स, जो दो स्पीशीज़ को, दो जीनस को, दो फैमिलीज़ को, जिन दो टैक्सा ग्रुप्स को हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं, अगर हम उनके दो स्ट्रक्चर्स को कहीं किसी बुक में कहीं पर आप लिखा हुआ पढ़ते हैं कि दे हैव होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स, इट मीन्स वो स्ट्रक्चर्स उनके इंसेस्टर्स में इवॉल्व हुए थे एंड फिर इनको मिले. मीन्स दे हैव इंसेस्ट्रल, दे आर सिमिलर ड्यू टू इंसेस्ट्री. You understand? So by homology means ancestral relationship. Whenever you say something, for example, हम कहते हैं कि these are homologous genes. For example, we and chimpanzee have homologous genes. It means human और chimpanzee में ये जो genes हैं, they have ancestral relationship. अगर हम कहते हैं similar genes हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये homologous हैं. यानी homologous sequences, homologous DNA sequence और homologous protein sequence का मतलब simply similar DNA और protein sequences नहीं है. ठीक है, similar sequences बहुत सारी reasons की वजह से चीज़ें similar हो सकती हैं. ठीक है, ओके. तो sequences के लिए हम यूज़ करते हैं term identical sequence. Identical means they are, A to A, C to C, and G to G. They are similar sequences. You are comparing two different sequences, right? They have same. तो हम कहते हैं identity है, ये sequence identity है. तो sequence identity and sequence homology is different. When you say homology, it means you are talking about the ancestral relationship. Do I make myself clear? I hope so. If didn't, you can ask later on WhatsApp. Okay. Okay, look at these homologous structures. For example, the forelimb of the human, cat, whale, and bat. Now, bat look different. Bat look different from human. Okay, they are entirely different. Whale look different from the cats, and so does the cats. Cats, they look different from the bats. But their forelimbs are homologous structures because they all are mammals. And they have ancestral relationships. Before there were bats, whales, cats, and human on Earth, there were ancestors of these mammals, and they had that forelimb. And later that forelimb have been changing over time. इसका चेंज होना कोई बड़ी बात नहीं है. हमने पीछे पढ़ा था हॉक्स जीन्स होते हैं, डेवलपमेंटल जीन्स होते हैं. अब आप look at the basic structure of the forelimb of the whale, bat, cat, and human. They look very similar. ओके, अभी मैं सिमिलर कह रहा हूँ, मैं होशो हवास से कह रहा हूँ. ओके, अभी हमारे लिए सिमिलर हैं, तो हम इनको होमोलॉग्स क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दे हैव इंसेस्टर रिलेशनशिप.
they were evolved in their ancestors. Yes, they are similar, but they are homologs. Homologs mean because of the ancestors. Okay, अब जरा गौर करें स्ट्रक्चर के ऊपर. ह्यूमन की जो फोर लिम्ब है उसके ऊपर ह्यूमरस है और ऊपर एक वो बाल एंड सॉकेट जॉइंट है. ठीक है, अब सब में देखें वही सेम जॉइंट है जो आपको ये इंडिगो या लाइट पर्पल या उससे कलर की जो बोन सबसे ऊपर वाली है वो सब में है. डोंट यू थिंक कि ये चेंज हो सकती है सिर्फ एक छोटी म्यूटेशन से? हमने आपको दिखाए थे वो जो डॉर्फ थे, यानी उनकी जो लॉन्ग बोन्स के जीन्स के अंदर म्यूटेशन आए, मीन देवर ह्यूमन, बट उनकी जो लॉन्ग बोन की म्यूटेशन आई तो उनकी बोन छोटी रह जाती है, किसी का स्कल छोटा रह जाता है. आपको याद होगा हमने पीछे आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी, हॉक्स जीन्स, राइट. ओके, अब ये सिमिलर स्ट्रक्चर है, गौर करें स्ट्रक्चर सिमिलर है, सिर्फ थोड़ी सी म्यूटेशन से वो डिफरेंट हुआ. ओके, अब दूसरी जो पहली जो ऊपर वाली बोन है वो ह्यूमरस है, उसके बाद रेडियो सरलना. देखें सब में रेडियो सरलना है, मतलब दो बोन्स मौजूद है सब में. अब म्यूटेशन से उनका साइज छोटा बड़ा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है. उसके बाद कार्पल्स हैं, देखें सब में है, बैट, वेल, कैट, ह्यूमन सब में है. फिर मेटाकार्पल सब में है, ग्रीन वाली. और फिर सबसे नीचे वाली ब्लू वाली फ्लेंजेस सब में है कि नहीं है ना? मजे का. Yes, that is the beauty. So this is what we called comparing the anatomy. So anatomy जो comparison है वो हमें बता रहा है कि these structures are similar. Now अब जो similarity है वो simple similarity नहीं है, because they all are mammals. Bat जो है मतलब उड़ती है bat, it flies, but it's not a bird, it's a mammal. Whale, it swims, but it's not a fish, it's a mammal. Cat is a carnivorous and it's a mammal. Human is a very dangerous, greedy, selfish animal, and it's also a mammal. So all these structures were evolved in their ancestors. Later they were modified due to the mutations in the developmental genes, and the forelimb of these four taxa, they became different from each other. So they have ancestor relationship. That's why forelimbs of the mammals are homologs. They are homologous structures. So I hope you understand now. Okay, there is another kind of similarity. Different species के बीच में एक similarity और तरह की हो सकती है, हम उसे convergence कहते हैं. अब convergence का लफ्ज़ शायद आपने कभी ना सुना हो या hopefully सुना भी हो. ओके, तो अब इसमें क्या होगा, अब दो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, दो डिफरेंट टैक्सा हैं जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं. उनके अंदर सिमिलर फीचर्स होंगी, लेकिन वो सिमिलर फीचर्स उनकी इंसेस्टर में नहीं होंगी. इट मीन्स कि वो इंसेस्टर रिलेशनशिप को शो नहीं करेंगी. तो हम जब वो जो पीछे आपने क्लैडिस्टिक देखा, मतलब हम देखेंगे कि एक क्लैड के ऊपर दो ग्रुप्स हैं और मोनोफाइलेटिक ग्रुप्स को आप कंपेयर कर रहे हैं या पैराफाइलेटिक ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो उनके बीच में सिमिलर फीचर्स हैं. लेकिन आप पीछे जब उनके इंसेस्टर्स में जाएंगे और पीछे जाएंगे तो वो वहाँ उनके अंदर नहीं होंगी, यानी वो उन दोनों का आपस में इंसेस्टर रिलेशनशिप शो नहीं करेंगे. फॉर एग्जांपल अभी हमने बात की कि वेल जो है वो इट स्विम्स, रेप्टाइल्स भी स्विम करते हैं, फिश भी स्विम करती है, बट फिश और वेल डिफरेंट हैं. दे आर अनदर क्लास, पाइसस एंड द मैमेलिया, राइट. तो दे आर डिफरेंट. एक मैंने पहले भी आपको पिछले लेक्चर में बात की कि आपने ये नहीं क्या चले जाना, बहुत पीछे नहीं चले जाना कि हमारा इंसेस्टर तो एक ही है, सबका पानी में ज़िंदगी की इब्दा हुई थी. नहीं, हमने पिछला इमीडिएट इंसेस्टर देखना है, उससे पिछला. तो जब हम ऐसे करते हुए काफ़ी सारे पिछले लिनिएजेस पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि इनके इंसेस्टर्स में ये प्रॉपर्टीज़ नहीं थी, यानी ये इनके अंदर आई हैं. तो इसको हम कन्वर्जेंस कहते हैं. ठीक है, लेट मी शो यू मोर पिक्चर्स टू एक्सप्लेन कन्वर्जेंस. फॉर एग्जाम्पल जो ऑस्ट्रेलियन मैमल्स हैं, दे आर मार्सुपियल्स, हम उनको कहते हैं मार्सुपियल्स, पाउच्ड मैमल्स, राइट. और दूसरे प्लेसेंटल मैमल्स हैं. प्लेसेंटल मैमल्स और मार्सुपियल मैमल्स, अब ऑस्ट्रेलिया हैज़ बीन सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर ओवर 50 मिलियन ईयर्स, सेपरेट है. तो जो बाकी कॉन्टिनेंट्स के ऊपर स्पीशीज पाई जाती हैं मैमल्स की, यस दे आर मैमल्स, और इधर भी हैं. अब इनके सबसे पहले अगर आप ये जो बर्रोइंग एक एनिमल है, मोल, जो प्लेसेंटल एनिमल, और दूसरा एक मार्सुपियल मोल, दे बोथ आर मोल्स. लेकिन मार्सुपियल मोल और बरोर मोल को हम इनकी एक स्पीशी क्या, इनके पीछे इंसेस्टर भी एक नहीं है, उससे पिछला इंसेस्टर भी एक नहीं है, 50 मिलियन ईयर से ये एक दूसरे से सेपरेट है. यू गेटिंग दिस? तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस और जो डिफरेंट तरह की
ओवर टाइम चेंजेस थी, उससे मार्सुपियल मोल इज स्टिल मोल, क्योंकि ये बरोइंग करता है, बरोइंग एक्टिविटी करता है, दूसरा मोल भी बरोइंग एक्टिविटी करता है, ठीक है। एक दूसरा हैबिट है एंट ईटिंग। तो एंट ईटिंग हैबिट ऑफ डिफरेंट मैमल्स, अब ये एक नम्बैट एंट ईटर, ये मार्सुपियल है, पाउच्ड है, और एक लेसर एंट ईटर है जो प्लेसेंटल है, दे बोथ ईट एंट्स। तो एंट ईटिंग इज अ सिमिलैरिटी विच इज नॉट होमोलोगस, मीन्स ये उनके इंसेस्टर से नहीं आई। जो नम्बेट था वो ऑस्ट्रेलिया में था, उसने अपने फीडिंग कंपटीशन में चलते उसने एंट्स खाना शुरू कर दी। जो लेसर है वो भी एक मैमल है, लेकिन वो दूसरे कॉन्टिनेंट्स पे है, उसने भी वहाँ उसको चींटियाँ मिली या पसंद आई उसको, तो उसने खाना शुरू कर दी। तो इनके इंसेस्टर्स ये नहीं करते थे, तो इनके इंसेस्टर से नहीं आई। ओके, इस तरह से माउस, मार्सुपियल माउस है, it is a mouse, we call it mouse because it looks like, but its species, its genus is different from the other mouse we have. It is separate from that mouse for 50 million years. तो ये मार्सुपियल है। ये जो इनके बीच में सिमिलैरिटीज हैं, जो उनके पिछले उससे पिछले उससे पिछले 50 मिलियन ईयर्स तक उनके इंसेस्टर्स में नहीं आ रही फीचर, तो हम उसे कह रहे हैं कि ये कन्वर्जेंस है। आई मीन ये दो सिमिलैरिटीज थी, तो जस्ट बाई चांस दोनों में डेवलप हुई है। जैसे स्क्विरल जो है it's a mammal and it's placental, and the flanger जो है वो भी flying squirrel है kind of, और वो मार्सुपियल है, मीन्स पाउच्ड है, दोनों उड़ते हैं, ग्लाइड करते हैं, मीन्स जंप करते हैं ट्री से दूसरे, ग्लाइडिंग। तो ग्लाइडिंग एक सिमिलैरिटी है, लेकिन ये इंसेस्ट्रल नहीं है। ये 30, 40, 50, 10, 15, 20 मिलियन ईयर्स में जस्ट बाई चांस सिमिलर डेवलप हो गई है उनके अंदर, ठीक है। तो दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सिमिलैरिटी, वी कॉल इट कन्वर्जेंस, राइट। इसी तरह से वुल्फ और कैट के अंदर भी हमने इसकी एग्जांपल देख सकते हैं आप। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू डोंट, यू कैन स्टडी मोर एंड यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। ओके, एनालॉजी, एनालॉजी भी सिमिलैरिटीज हैं, डिफरेंट स्पीसीज या दो टैक्सास जिनको हम आपस में कंपेयर करें। कंपेयर क्यों कर रहे हैं भला, मैं बार बार कर रहा हूँ, हम कंपेयर क्यों करें, बिकॉज वी वांट टू group them into different groups and subgroups, we want to classify them, and why we want to understand कि ये जो similarities हैं जिनकी बुनियाद पर हम उनको ग्रुप सब ग्रुप कर रहे हैं, वो गलत ना हो जाए कहीं, कि हम देखें कि भाई ये भी एंट ईटर है, ये भी एंट ईटर है, तो ये एक ही ग्रुप है, ये भी डाइव करता है, ग्लाइड करता है, ये भी ग्लाइड करता है, तो ये भी एक ही ग्रुप है, ठीक है। और वेल जो है चूंकि पानी में रहती है, तैरती है, तो उसको फिश में रख दें, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम देखेंगे जो उनकी जो सिमिलैरिटीज़ हैं उसकी बेस क्या है, वो सिमिलैरिटीज़ इंसेस्ट्रल हैं कि नहीं। अगर इंसेस्ट्रल होंगी तो वो सेम ग्रुप में जाएंगे, अगर इंसेस्ट्रल नहीं होंगी तो वो हम कैसे पता चलता है कि ये इंसेस्ट्रल हैं कि नहीं, हाँ, मुश्किल से पता चलता है जनाब। तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कितनी किस्म की सिमिलैरिटीज़ हैं, किस बुनियाद पर हम ग्रुपिंग और सब ग्रुप कर सकते हैं और किस बुनियाद पर नहीं कर सकते, ठीक है। तो कन्वर्जेंस की बुनियाद पर हम एक ग्रुप में यानी ऐसी सिमिलैरिटीज़ जो पीछे इंसेस्टर रिलेशनशिप में, पीछे उनके इंसेस्टर्स में, आई मीन 2, 4, 5 साल पिछली जो उनके इंसेस्टर्स गुजरे हैं, डिफरेंट टेक्सास, डिफरेंट स्पीशीज लेवल्स, उसमें नहीं थी, तो हम उसे कहते हैं कि ये होमोलोगस नहीं है, कन्वर्जेंस है, ठीक है। अच्छा, एनालॉजी एक और किस्म की है, सिमिलर फीचर्स प्रेजेंट इन डिफरेंट स्पीशीज बट नॉट फाउंड इन देयर इंसेस्टर लीनिएज। क्या डिफरेंस है, अगर इंसेस्टर लीनिएज में मिलते हैं होमोलोगस, अगर काफ़ी इंसेस्टर लीनिएज में पीछे जाके नहीं मिलती तो कन्वर्जेंस, और अगर बिल्कुल नहीं मिलती, कि जितना भी नॉन इंसेस्टर रिलेशनशिप हमने स्टडी किया उसमें कभी पीछे नहीं मिलती, तो हम कहेंगे ये एनालॉग्स हैं, एनालॉगस, ठीक है। अब देखें जैसे विंग्स जो हैं इंसेक्ट्स में और विंग्स हैं बर्ड में, अब विंग्स दोनों उड़ने का काम देते हैं, तो हर वो जो चीज़ उड़ती है उसे हम परिंदा नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो इसलिए इंसेक्ट्स अब देखें बिल्कुल डिफरेंट है, इंसेक्ट्स बहुत बहुत लंबी कहानी है, हंड्रेड्स मिलियन ईयर्स से, बल्कि उससे भी ज़्यादा इंसेक्ट्स जो हैं वो सेपरेट हैं। इंसेक्ट्स बहुत पहले, इंसेक्टा बहुत पहले इवॉल्व हुए थे, बर्ड्स बहुत बाद में आए, ठीक है। तो ये विंग्स उनके जो हैं वो इंसेस्ट रिलेशन में नहीं है, लेकिन क्यों दोनों के विंग्स क्यों हैं, क्योंकि दोनों विंग्स थे इसलिए दोनों उड़ना शुरू हुए, राइट। म्यूटेशन आई जिससे उनके विंग्स बने, जब विंग्स बने तो उन्होंने विंग्स का यूज़ सीखा। हमने आपको बताया था कि विंग्स उड़ने के लिए नहीं बनाए गए थे, जब विंग्स बने तो फिर उनके डिफरेंट पर्पस जो है वो यूज़ निकल आती है। अगर आपके भी पर निकल आएंगे तो आपको फिर उसका इस्तेमाल आ जाएगा। खैर हम काट देंगे उससे पहले ही आपके पर। एनीवे, हाँ, क्यों वैसे हम क्यों काट देंगे भाई, क्यों बड़े चाहते हैं कि आपके पर काट दीजिए,
हैं, क्योंकि वो खुद नहीं उड़ सके ना इसलिए हम आपको भी उड़ते हुए देखना नहीं चाहते, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, हम जेलस हो जाएंगे हम। खैर, देयर आर सम गुड पीपल हु हेल्प यू टू फ्लाई हाई एंड हाई, फाइंड दोज एंड फॉलो देम। एनीवे, अब यहाँ पर देखें होमोलॉजी एंड एनालॉजी जो है उसको आप कंपेयर कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल जो बैट का विंग है, ह्यूमन आर्म है और माउस फोर लिम्ब है। अब अगर आप होमोलॉजी देखें तो बैट, माउस और ह्यूमन। अब माउस, बैट और ह्यूमन कितने एक दूसरे से डिफरेंट नजर आते हैं। बैट का विंग है बट दैट विंग इज इंसेस्टर, हैज इंसेस्टर रिलेशनशिप विद द आर्म ऑफ द मैमल। बिकॉज हम जब पीछे जाते हैं ना इंसेस्टर्स में, तो पता चलता है कि बैट हमारे करीबी रिश्तेदार हैं, माउस हमारे करीबी रिश्तेदार है, वो मैमल्स हैं। लेकिन सेमली जो विंग है बैट का और फिर बटरफ्लाई का और बर्ड्स का, जब हम बैट के पीछे इंसेस्ट्री में जाते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं, तो उसका रिलेशनशिप मैमल से निकलता है। बटरफ्लाई का विंग रखता है बैट की तरह, लेकिन जब उसके हम पीछे जाते हैं तो वो इंसेक्ट से जाकर मिल जाता है। जब हम बर्ड्स का पीछे देखते हैं तो वो पहले एवियन से और फिर डायनासोर से जाकर मिल जाता है, राइट। तो समझ रहे ना आप, तो वो इसलिए इंसेस्टर रिलेशनशिप नहीं है, तो हम इसलिए, वो सिमिलरिटी तो है, तो इसलिए मुझसे कहते हैं ये एनालॉजी है। एनालॉजी मीन्स के पीछे, बहुत पीछे जाके भी उसका आपस में नहीं मिलता। अगर कुछ पीछे जाके मिल जाता, फ्यू एवोल्यूशनरी इवेंट्स पीछे जाके मिल जाता, तो हम कहते हैं ये कन्वर्जेंस है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब मैं आपको प्लांट में भी इसकी एग्जांपल देता हूँ, एनिमल में सिर्फ नहीं होता। अब ये ओकोचिलो एक प्लांट है नॉर्थ अमेरिका में, जो आप लेफ्ट मोस्ट पिक्चर ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। लेट मी शो यू दिस वन। और ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये एलुकोइडिया है इन मडगास्कर। अब देखें ज़रा, गूगल करें ज़रा, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका किधर है और मडगास्कर किधर है। अब ये दो प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स तो आपको पता मूव भी नहीं करते, तैरते भी नहीं, एक से दूसरी जगह भी नहीं जाते। तो आप देखें दोनों प्लांट्स, आपको ऐसे ही लग रहा है कि जो सेंटर वाला सर्कल है वो भी वही प्लांट है और वो भी सिर्फ उसका क्लोज व्यू है। एक्चुअली देखिए उनके लीफ, उनके स्टेम, उनके नेल्स जो हैं, जो उनके नीडल्स हैं, वो ऑलमोस्ट सेम है, but they are different, they are completely different genus. So this similarity, अगर इन दोनों प्लांट्स को आप कंपेयर, क्योंकि ये प्लांट मडगास्कर में और वो नॉर्थ अमेरिका में इवॉल्व हुआ, तो पीछे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स जब हम इनकी इंसेस्ट्री स्टडी करते हैं तो वो एक जैसे आपस में उनके इंसेस्ट रिलेशनशिप नहीं मिलता, तो हम इसलिए इसको कह देते हैं कि दे आर एनालॉग्स, ये एनालॉग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। ओके, एक और किस्म की सिमिलरिटी है, उसको हम पैरेललिज्म कहते हैं, ठीक है। पैरेललिज्म ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से आ जाती हैं। तो हम इसको डिफाइन करते हैं कि सिमिलर फीचर्स प्रेजेंट इन डिफरेंट स्पीशीज ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर फॉर एग्जांपल, और उनके जो इमीडिएट इंसेस्टर्स है वो एक दूसरे से डिफरेंट थे। जो आपने पीछे पैराफाइलेटिक ग्रुप्स देखे हैं, तो वो अगर पैराफाइलेटिक ग्रुप मीन्स के उसका जो क्लैड है वहाँ पर एक रहने वाला जो टेक्सा है, और जो दूसरी तरफ ट्री के आपने देखा था, अगर उन दोनों की एक जैसे ग्रुप्स, एक जैसे फीचर्स हो तो हम उसे कहेंगे ये पैरेललिज्म है। फॉर एग्जांपल ये जो एंट ईटिंग हैबिट्स हैं, तो इसको हम पैरेललिज्म में भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ये ज़रा देखें पैरेललिज्म एक्सप्लेन्ड बेटर वे। लेक विक्टोरिया, इफ़ यू रिमेंबर, आपको पता है कि वहाँ पर कुछ 200 के करीब स्पीशीज़ हैं फ़िश की, और लेक विक्टोरिया हैज़ ऑलवेज बिन सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये लेक मलाई है, यहाँ पर अपनी स्पीशीज़ हैं और ये एक दूसरे से, अगर आप नीचे देखें, ये जो आप ट्री देख रहे हैं ना इस वक्त, ये सचमुच वाला फेलोजेनेटिक ट्री है, ये क्लैडोग्राम नहीं है, क्लैडिस्टिक्स बेस्ड ट्री नहीं है। क्यों? ये नीचे टाइम बता रहा है कि जो लेक विक्टोरिया और मलावी है वो एक ही क्लैड के ऊपर हैं उसकी स्पीशीज़, लेकिन वो 5 मिलियन ईयर्स पहले उनका एंसेस्टर सेम था, ठीक है। अच्छा, नीचे जो है वो एक और दूसरी लेक के जो हैं, अब आप देखें इनकी सिमिलरिटीज़ हैं, यानी स्ट्रिप्स हैं उनके ऊपर। जो राइट साइड पे आपको फिश नज़र आ रही है उन सबके हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स हैं, और जो लेफ्ट पे आपको फिश नज़र आ रही है उन सबके वर्टिकल स्ट्रिप्स हैं। तो ये सिमिलरिटी हो गई ना। तो अगर आप सिर्फ इसको देखकर कह दें कि ये एक ही स्पीशी है, या इनकी ये जो फीचर्स हैं ये इंसेस्टर में पीछे नहीं है। आप देखें कि जो सबसे नीचे वाला आपको एक नज़र आ रहा है, ये जो उसको रेड कर दिया ना, तो इसमें बहुत सारे क्लैड्स हैं नीचे, तो हमने उन सारे क्लैड्स को एक जगह पे कंबाइन कर दिया है, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट क्लैड्स होंगे, ज़रा 15 मिलियन ईयर्स की स्टोरी। तो 15 मिलियन ईयर्स तक पीछे, या 12 मिलियन ईयर्स तक लेक विक्टोरिया, लेक मलावी और ये जो लेक टांगानिका है, ये पीछे इनके इंसेस्टर नहीं मिल रहा, तो हम इसको फिर कहते हैं पैरेललिज्म है। यानी दीज आर सिमिलर फीचर्स विच आर प्रेजेंट इन डिफरेंट स्पीशीज। व्हाट आर सिमिलर फीचर्स? वर्टिकल बार पैटर्न और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स,
दे आर सिमिलर फीचर्स बट दे आर नॉट फाउंड इन देयर इंसेस्टर्स। तो ये पैरेललिज्म है। इसी तरह की फीचर आप ये नीचे स्पैरो में भी देख रहे हैं कि जो ऊपर वाली उनकी जो दो स्पीशीज़ हैं, ऊपर वाला क्लैड जो है वो आई पेक्टोरेलिस एंड आई मीजोमेलस, और उसके बाद नीचे एक क्लैड है और उसके बाद एक क्लैड है। तो ये देखें कि ये पीछे नीचे, तो ये वाला ट्री फाइलोजेनेटिक नहीं है, ये क्लैडिस्टिक्स है, क्योंकि इसमें टाइम फ्रेम शो नहीं हो रहा। तो ये क्लैडोग्राम है, ठीक है। हम इसको फर्दर एक लेक्चर आगे आ रहा है, उसमें हम इसको क्लियरली डिस्टिंक्ट करेंगे एक दूसरे से। एक और पिक्चर है टू एक्सप्लेन यू मोर के होमोलॉजी, पैरेललिज्म, कन्वर्जेंस और एनालॉजी में क्या फ़र्क है। तो अगर होमोलॉजी आपको बताया कि आप उसके पीछे इंसेस्टर में जाएं तो वो फीचर उनके इंसेस्टर के अंदर हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे और हमारे करीब जो चिंपैंजी हैं, इनके जो जीन्स हैं वो होमोलॉग्स हैं, क्योंकि पीछे जो हम दोनों का चिंपैंजी का और हमारा जो इंसेस्टर है उसमें वो जीन पहले डेवलप हुआ था। ओके, फॉर एग्जांपल स्कल का जो हमारा स्ट्रक्चर है हमारा और चिंपैंजी का, वो ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ बोन के साइज का डिफरेंस है। तो बोन को डिटरमिन करने वाले जो जीन्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे इंसेस्टर चिंपैंजी के अंदर और हमारे अंदर सेम है, यानी जीन्स सिमिलर हैं, ठीक है। अब वो होमोलॉग्स भी हैं, क्यों उनके अंदर म्यूटेशंस हैं, आइडेंटिटी उनकी कम है, मतलब म्यूटेशंस हैं बहुत सारी जगहों पर, जिसकी वजह से हमारे और उनका स्कल साइज डिफरेंट है, लेकिन बोन पैटर्न्स ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर पीछे हमारे और चिंपैंजी के इंसेस्टर में जाएंगे तो उनके अंदर भी वो जीन पाया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे ये होमोलॉग जीन्स हैं, राइट। ओके, पैरेललिज्म में क्या है कि जो पिछले इंसेस्टर में आप जाते हैं तो वो नहीं मिलता। जैसे आपने पीछे दो पिक्चर्स देखी हैं कि 15 मिलियन ईयर्स पीछे जाकर मिल रहा है। कन्वर्जेंस जो है वो उससे भी पीछे आप जाएंगे, यानी उनके जो इंसेस्टर में आप पीछे गए तो उसमें वो करैक्टर मतलब नहीं है, और पीछे गए तो वो नहीं, उनके इंसेस्टर में नहीं मिल रही वो फीचर, तो हम उसके कन्वर्जेंस। और एनालॉजी में क्या होता है कि पीछे बहुत इवन 100 मिलियंस, 200 मिलियंस, 300 मिलियन ईयर्स तक आप पीछे गए तो आपका कोई ऐसा इंसेस्टर उनका नहीं मिला जिनके अंदर वो वाली फीचर्स हमें पता हो कि ये इससे इसमें आई है, तो वो उनमें खुद डेवलप हुई है, राइट, उनके इंसेस्टर में नहीं थी। तो इसको हम कहते हैं तो ये डिफरेंट सिमिलैरिटीज़ हैं। तो ये सारी सिमिलैरिटीज़, सिमिलर फीचर्स जो हैं, इनकी वजह से हम ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट सिमिलर ग्रुप्स में नहीं ला सकते। अब ज़रा गौर फरमाइए, विंग्स जो हैं इंसेक्ट्स के और जो विंग्स जो हैं बर्ड्स के, दोनों के विंग्स हैं, तो उनके अंदर विंग्स वाले जीन्स भी होंगे। तो क्या हम उनके विंग्स वाले जीन्स को होमोलॉगस जीन्स कहेंगे? नहीं कहेंगे, ठीक है। दोनों के पास विंग्स के जीन्स हैं, दे हैव एक्वायर्ड दोज जीन्स टू डेवलप विंग्स, बट दोज जीन्स आर नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम देयर इंसेस्टर्स। पीछे पीछे कहीं उन्होंने डेवलप किए हैं, यानी उन दोनों के कॉमन इंसेस्टर से नहीं आए वो। ऑफ कोर्स बर्ड्स के जो विंग्स के जीन्स हैं उसने अपने इंसेस्टर से पीछे से लिए होंगे, पिछले से। आपको पता है कि जितनी भी एवोल्यूशनरी नोवेलिटीज़ होती हैं वो ओल्ड स्ट्रक्चर्स की मॉडिफिकेशन ही होती हैं, लेकिन मतलब बर्ड्स ने अपने पिछले इंसेस्टर में किसी जीन में म्यूटेशन आने से उनके विंग्स डेवलप हुए हैं। इंसेक्ट्स के पीछे इंसेस्टर्स में किसी जीन में म्यूटेशन आने से उनके विंग्स डेवलप हुए हैं, लेकिन वो जीन दोनों ने एक इंसेस्टर से नहीं लिया, समझ रहे ना आप। तो इसलिए हम उस जीन को होमोलॉगस जीन्स नहीं कहेंगे, ओके। इट इज़ वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि होमोलॉगस जीन्स क्या होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। होमोलॉगस जीन्स वो जीन्स हैं, होमोलॉजी वाले फिगर को देखें, लेफ्ट मोस्ट जो वाई आप देख रहे हैं, होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स जो हैं, जाहिर है उनकी जेनेटिक बेसिस है ना, उनके जीन्स है ना। तो वो जीन्स जो हमने, यानी एक ग्रुप ने और दूसरे ग्रुप ने, दोनों के पास वो जीन है, और वो जीन उन दोनों का जो पीछे कॉमन इंसेस्टर था वो जीन उसमें मौजूद था, और उसमें जब स्पीसिएशन हुई तो वो जीन इन दोनों के पास है। ऑफ कोर्स, फॉर एग्जांपल हमारा 4 लिम्ब का और चिंपैंजी के 4 लिम्ब का, हमारी स्कल का और चिंपैंजी के स्कल का जीन्स, हमारे आई का और चिंपैंजी के आई का जीन, ठीक है। हम दोनों ने अपने इंसेस्टर से लिया है। हेमोग्लोबिन इसकी एग्जांपल है, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन क्या है इसमें, होमोलॉगस, हाँ इट इज़ होमोलॉगस ऑफ कोर्स, राइट। तो हम उसको आपस में फिर होमोलॉगस। तो अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आप फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करते हैं ना बेस्ड ऑन डीएनए और प्रोटीन सीक्वेंस, यू ऑलवेज इनरोल homologous gene sequences, homologous DNA और प्रोटीन सीक्वेंसेस, राइट। तो आप इंसेक्ट के विंग्स वाले जीन्स और बर्ड्स के विंग्स वाले जीन्स के, दोनों भाई विंग्स के जीन्स ही, उनको आपस में कंपेयर नहीं करेंगे। अगर आप कंपेयर करेंगे एक ट्री बन जाएगा, बट वो ट्री गलत होगा टेक्निकली स्पीकिंग, ठीक है। तो ऐसे नहीं हम कंपेयर करेंगे। होमोलॉगस जीन्स को कंपेयर करते हुए हम आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाएंगे,
ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि इंसेक्ट्स और अगेन आई एम सेइंग इंसेक्ट्स और बर्ड्स का आखिर तो सबका ही पीछे यूनिवर्सल कॉमन इंसेस्टर सेम ही है, लेकिन हमने उस पर अचानक नहीं जाना, हमने स्लोली जाना। तो इसलिए हम क्लोजली रिलेटेड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके होमोलॉगस सीक्वेंस, फिर उनके पिछले इंसेस्टर के होमोलॉगस सीक्वेंस, फिर उनके पिछले इंसेस्टर के होमोलॉगस, तो होमोलॉजी से बेस्ड कंपैरिजन हम करते हैं, पैरेललिज्म, कन्वर्जेंस और एनालॉजी बेस्ड नहीं करते। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो इफ यू बिल्ड द ट्री यू मस्ट इनरोल होमोलॉगस डीएनए सीक्वेंस। अब होमोलॉगस का मतलब यहाँ सिमिलर सीक्वेंस नहीं है, वो वाली बात भुला दें, अपने जहन से निकाल दें, ठीक है। तो सॉर्टिंग, एनालॉजी एंड होमोलॉजी, अब हम इसकी बुनियाद पर जैसे मैं बता रहा था कि जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जितने कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेन और अदर किडनीज, जितने भी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके एनालॉग्स होने का चांस कब होता है, ठीक है। यानी अगर आप एनाटॉमी कंपेयर करते हैं, आप मॉर्फोलॉजी कंपेयर करते हैं, तो यू कंपेयर दी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। तो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स जो अगर दो ऑर्गेनिज्म के कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स सिमिलर हैं तो वो उनके एनालॉग्स होने का चांस कम है, उनके होमोलॉग्स होने का चांस ज़्यादा है, ठीक है, चांस है ये, राइट। तो जब आप दो ऑर्गेनिज्म को कंपेयर कर रहे हैं और उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को आप कंपेयर करते चले जाते हैं, तो जितना उनमें से होमोलॉजी आपको मिलती जाएगी उतना वो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होंगे, ठीक है। वो इसमें आप सिर्फ एनाटॉमी को नहीं देखेंगे या सिर्फ मॉर्फोलॉजी को नहीं देखेंगे, आप जेनेटिक बेसिस को भी इंक्लूड करेंगे, डीएनए प्रोटीन सीक्वेंस को बेसिस को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ओके, ये एक और टर्म है जो हम आमतौर पर इसमें यूज़ करते हैं, शेयर्ड प्रिमिटिव कैरेक्टर। या जब आप ट्री की इंटरप्रिटेशन करते हैं या फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं तो हम कहते हैं फला दे हैव अ शेयर्ड प्रिमिटिव कैरेक्टर, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, रेप्टाइल्स, फिश, बर्ड, एम्फीबियन, मैमल्स, मतलब अब मैमल्स में वेल देखें हमसे डिफरेंट है, और ग्राउंड हार्ट, ये सब वर्टिब्रेट्स हैं, इन सब के अंदर बैकबोन है, तो है ना सिमिलरिटी। और ऑफ कोर्स इंसेस्ट्रल सिमिलरिटी है क्योंकि ये सब वर्टिब्रेट्स हैं, मैमल्स, बर्ड्स, फिश, हम सब के इंसेस्टर जो हैं वो ह्यूमन, इन सब के इंसेस्टर के अंदर वर्टिब्रेट डेवलप हुआ था। तो ये होमोलॉजी है, ये होमोलॉग स्ट्रक्चर है, वर्टिब्रल कॉलम जो है, जो बैकबोन है हमारी, ठीक है। लेकिन ये बहुत पहले डेवलप हुआ था, बहुत पहले, राइट, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ईयर्स अगो। तो इसलिए हम इसे कहते हैं शेयर्ड प्रिमिटिव कैरेक्टर, ओके। अब एक दूसरा है कैरेक्टर, उसे हम कहते हैं शेयर्ड डिराइव्ड कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बोला कि वो सभी ऑर्गेनिजम्स जिनमें बैकबोन है तो उनकी एक होमोलॉजी होगी उनके अंदर, ठीक है। लेकिन अब वेल और जो दूसरे एम्फीबियंस हैं उनके अंदर सिर्फ मैमल्स, यानी वर्टिब्रेट्स में सिर्फ मैमल्स ऐसे एनिमल्स हैं जिनके जिस्म पर बाल हैं, हेयरी, राइट। तो ये एक शेयर्ड मीन सभी मैमल्स में है लेकिन ड्राइव्ड है, ये बाद में आया है, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं शेयर्ड ड्राइव कैरेक्टर। ये एक और देखें, ये मैंने खुद ड्रा किया है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि एक सिमिलर कैरेक्टर जो होता है दो ऑर्गेनिज्म के बीच, वो होमोलॉजी भी हो सकता है और एनालॉजी भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जो एनालॉजी वाला सर्कल है उसमें आप माउस देख रहे हैं, कंप्यूटर वाला माउस और दूसरा माउस, दे बोथ आर माउस बट दे आर नॉट होमोलॉग्स ऑफ कोर्स। लेकिन होमोलॉजी में आप देख रहे हैं कि वो मैंने विंग लगाया है, सॉरी 4 लिम्ब लगाया है। अब होमोलॉजी जो है वो प्रिमिटिव भी हो सकती हैं, ऑफ कोर्स इंसेस्ट्रल होंगी, और ड्राइव्ड कैरेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, जो डेटा है हमारे पास, जो मोलेकुलर डेटा, क्योंकि हम फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने जा रहे हैं, तो मोलेकुलर डेटा जो डीएनए और प्रोटीन सीक्वेंस बेस्ड है, प्लस एनाटॉमिकल कंपैरिजन, प्लस डीएनए प्रोटीन के अंदर और ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ जो हैं, यानी हम देखें, हमने कंपेयर किसको करना है, होमोलॉग्स डीएनए प्रोटीन सीक्वेंस को। मीन हमें पता है कि इंसेस्टर रिलेशनशिप इनके अंदर है, और उनके अब फॉर एग्जांपल हम डिफरेंट जो मैमल्स हैं उनको कंपेयर कर रहे हैं किसी एक डीएनए सीक्वेंस की बेस पर। तो फॉर एग्जांपल हम माउस, चिंपैंजी और ह्यूमन, तीनों मैमल्स हैं, तीनों में हेमोग्लोबिन का जीन है जो इन तीनों ने अपने इंसेस्टर से लिया है, या उसको जब हम कंपेयर करेंगे तो उस होमोलॉगस डीएनए सीक्वेंस के अंदर जिन दो में है, ये तीन है ना, माउस, चिंपैंजी और ह्यूमन, तो इन तीनों में जो दो सीक्वेंस आपस में ज़्यादा सिमिलरिटी रखते होंगे, ज़्यादा आइडेंटिटी रखते होंगे, वो मोर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ कहलाएंगी, ठीक है। तो हियर हमने जब एनालाइज किया तो पता चला कि चिंपैंजी और ह्यूमन आर मोर क्लोज रिलेटेड, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हम
अगर अदरवाइज होगा कि हमें अपेरेंटली तो चिंपैंजी और ह्यूमन एक जैसे लग रहे हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन हम जब डीएनए सीक्वेंस कंपेयर किया तो पता चला कि ये तो माउस से ज़्यादा क्लोज है, माउस भी हमारे वैसे काफ़ी क्लोज है। तो ये मोलेकुलर डेटा जो है हमने आपको बताया था कि इसके लिए हमें ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ज़्यादा सूटेबल है। ये वाला ट्री जो है ये आप देख रहे हैं, ये क्लेडिस्टिक बेस्ड ट्री ऑफ लाइफ है। ऑल लाइफ इज हियर इन दिस ट्री। ये ट्री आई पिक्ड दिस ट्री फ्रॉम द इंटरनेट, लेकिन उसके बाद इसको लेबल मैंने किया है। ये जो आप 3 ओवल शेप्स देख रहे हैं ये मैंने ऐड किए हैं, और उसके बाद ऊपर नाम इसके लिखा है, ये बैक्टीरिया यूकेरियोट्स की। और देखें ये जो ओवल शेप्स ऐड की हैं डिस्टिंक्ट करने के लिए, इससे कितना खूबसूरत लगना शुरू हो गया ट्री, राइट। ओके, तो इसमें देखें ये जो ब्लू या आप देख रहे हैं इसका ओवल बैक्टीरिया वाला जो है, तो ये सारे बैक्टीरिया, तो इसमें ये सारे ये दिखा रहा है कि कौन कौन सी जो बैक्टीरियल फैमिलीज हैं वो कितनी क्लोज रिलेटेड हैं, और यूकेरियोट्स की जो डिफरेंट किंगडम्स हैं, फंजाई, एनिमल्स, प्लांट्स, एल्गी, प्रोटोजोआ, वो आपस में कितनी क्लोज रिलेटेड हैं, और आर्किया जो है वो एक अलग ट्री से अलग जा रहे हैं, और सेंटर पॉइंट पे ये सभी जो है इनका एक यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर एक ही है। लेकिन अगर आप गौर करें तो देखें, गौर फरमाइए, एक सेंटर पॉइंट है जिससे 2 तरफ ब्रांच जा रही है, राइट और लेफ्ट। जो लेफ्ट जा रही है वो आगे जाके फिर 2 में डिवाइड हो रही है, आर्किया और यूकेरियोट्स में, ठीक है। इसका मतलब है आर्किया और यूकेरियोट का एंसेस्टर सेम था, और जो बैक्टीरिया है वो फिर अलग से हैं, लेकिन इन सब का एंसेस्टर तो पीछे एक ही था, ठीक है। तो ये क्लेडिस्टिक्स है, ये क्लेडिस्टिक बेस्ड ट्री है। ये हमें ट्री ये नहीं बता रहा कि ये कब हुए थे, लेकिन जनरल रिलेशनशिप बता रहा है, ठीक है। ओके, तो नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड, यू हैव लर्न सम मोर टर्म्स कि जब हम फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करते हैं तो हम जिन फीचर्स को कंपेयर करना है उसकी लॉजिक क्या है, ठीक है। तो और इस तरह जब सीक्वेंस इनरोल करते हैं ट्री बनाने के लिए तो उसका पीछे प्रिंसिपल क्या है, लॉजिक क्या है, होमोलॉगस को इनरोल करते हैं। क्यों इनरोल करते हैं? क्योंकि वो इंसेस्ट्रली क्लोजली रिलेटेड इंसेस्टर्स हैं, तो क्लोजली रिलेटेड इंसेस्टर को कंपेयर करना ही मेक सेंस। दूर वालों को कंपेयर करेंगे तो हमारा जो ट्री होगा उसमें बहुत बड़े बड़े यानी मिसिंग गैप्स आ जाएंगे, उसके अंदर हम लिंक नहीं इस्टेब्लिश कर सकेंगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।